تو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ عام انتخابات کے لیے پولنگ میں صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سخت سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل مکمل ہونے کے قریب ہے۔ 7 لاکھ سے زائد پولیس، رینجرز اور فوج کے جوان ڈیوٹی دیں گے۔ کس کا مقدر، کس کے نصیب میں ہار؟ پاکستان میں الیکشن 2024 کا اکھاڑا تیار۔ پولنگ اسٹیشنوں تک سامان کی ترسیل تقریباً مکمل۔ فوج، پولیس، رینجرز کے جوانوں نے ڈیوٹیاں سنبھال لیں۔ انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد سخت سیکیورٹی میں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس، مہریں، روشنائی پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچائی گئی۔ 90,000 پولنگ اسٹیشنوں پر 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد ووٹر حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ شفاف پولنگ یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی افسر بھی نگرانی کریں گے۔ اسلام آباد پولیس چیف کہتے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ Police has made a very comprehensive security plan for the protection of the voters. There will be officers from Pakistan Rangers and Pakistan Armed Forces who are providing very essential part of the security for these general elections. شہری صبح 8 بجے سے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈال سکیں گے۔ کچھ کو بہتری کی امید، کچھ کا کہنا ہے اس بار بھی وہی چہرے جنہوں نے ماضی میں کیا مایوس۔ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ پہلے تو دعا کریں کہ کل جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ پرامن ہوں۔ یہی توقعات ہوتی ہے کہ نیا بندہ آئے اور تبدیلی لائے، لیکن تمام چہرے جو وہ سامنے آ چکے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انتخابات کے نتائج کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا جو انٹرنیٹ نہ ہونے پر بھی کام کر سکے گا۔ نئے قانون کے تحت RO رات 2 بجے تک نتائج جاری کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کسی پولنگ اسٹیشن سے نتیجہ نہ پہنچا تو وجہ ریکارڈ کی جائے گی۔ صبح 10 بجے تک ہر حال میں ہر حلقے کا نتیجہ جاری کر دیا جائے گا۔ 8 فروری کے بعد میں جشن منا رہا ہوں گا۔ زبردست انتخابی مہم چلائی، عوام کا شکر گزار ہوں۔ بلاول بھٹو کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا نون لیگ پنجاب کی جماعت ہے۔ کیا پیغام دیا نون لیگ نے سندھ اور بلوچستان کے عوام کو؟ کیا وہ پاکستان کے حصے نہیں؟ ملتان میں عوام کو منہ تک نہیں دکھایا، پوری قیادت مہم چلاتی رہی۔ کیا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کراچی مہم نہیں چلا سکتا تھا؟ نہیں چاہوں گا شہباز شریف کی طرح ملک کو چلائیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا مقصد صرف یہ تھا کسی طرح میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جا سکے۔ میرے لیے ناممکن ہوگا میں ان کی کابینہ میں کوئی عہدہ لوں۔ گڑبڑ کرنے والے اب رہے نہیں۔ قوم کے پاس اپنا مستقبل منتخب کرنے کی چابی ہے۔ فروری کے بعد تو وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونے جا رہا ہوگا۔ میں تو جشن منا رہا ہوگا۔ کیمپین تو بہت ہی اچھا چلا۔ چاروں صوبوں کے عوام کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں محبت دکھایا۔ نون لیگ نے بہت ہی خطرناک ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ پنجاب کا جماعت ہے، وفاق کا جماعت نہیں ہے۔ کیا پیغام بھیج رہے ہیں بلوچستان اور سندھ کے عوام کو؟ ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کا کیپٹل شہر ہے، وہاں اپنی شکلیں نہیں دکھائیں۔ وہ پاکستان کے حصے نہیں ہیں۔ صاحب تھے، مریم بی بی تھی، حمزہ شہباز صاحب تھا، شہباز شریف صاحب تھا، کسی ایک کو آدھا گھنٹہ کی بھی نہیں ملا۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، وہاں آ کے کیمپین کرے۔ کیوں ڈر رہے تھے؟ میرے ساتھ ڈبیٹ کر کے مجھے شکست دلوا دیتے۔ چاہوں گا کہ میں ایک نیا سوچ لے کر آؤں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرح اس ملک کو نہ چلائیں، نہ معاشی بحران میں اتنا دلچسپی لے رہے تھے، نہ کسی ووٹ کو عزت دلوانا تھا۔ بس ایک ہی ان کا مقصد تھا، حکومت میں آنے کا، میاں صاحب کو چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک و بائی کروک اس کرسی پہ چوتھی بار بٹھانے۔ جس نیت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ ہم اس وقت اکٹھے ہوئے، نہیں لگ رہا ہے کہ یہ میاں صاحب کا نیت ہے، اور میرے لیے تو ناممکن ہوگا کہ میں ان کا کیبنٹ میں تو سنبھالنا پڑوں۔ گڑبڑ کرنے والے رہے نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ 8 فروری کو ایک دن ہے جہاں اس ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ مستقبل کے فیصلے ملک کے عوام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے لیے ہماری پارٹی کے امیدوار میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اگر سادہ اکثریت ملتی ہے تو نواز شریف ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، سادہ اکثریت نہیں ملتی تو وزیر اعظم کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ پارٹی کا میرا کینڈیڈیٹ میاں محمد نواز شریف ہے بطور پرائم منسٹر۔
अवाम ने इसका फैसला देना है। रही ये बात कि स्प्लिट मैंडेट या सिंपल मेजॉरिटी अगर होती है तो मियाँ साहब पसंद फरमाएंगे, स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियाँ साहब का क्या ख्याल होगा। मैं समझता हूँ कि ये कल जब मैंडेट अवाम अपना दे देंगे इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे। अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी, जो भी नताइज आएंगे सरप्राइज करेंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा का दावा। ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मर्तबा आजाद उम्मीदवार किंग मेकर हैं। अक्सरियत बनाने के लिए आजाद उम्मीदवार ही किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए बजिद रहे तो पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत में अहम रोल होगा। हिसाब से सर कोई सिंपल मेजॉरिटी पार्टी नहीं ले रही। PNN अंडर 100 है, 80 से 90 कहूंगा। PPP प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो किंग मेकर्स हैं। कितने जीतेंगे इंडिपेंडेंट्स? बाय फार आई थिंक जितनी मेजॉरिटी बनाने के लिए या जरूरत है उसमें मेरे ख्याल ज्यादा खेल तो इंडिपेंडेंट्स का। JUIF जो है 9 से 12, MQM होगी 8 to 13, IPP 3 से 5, PTI 35 से 45 होंगे, जिसमें से 20 से 25 बिक जाएंगे। 17-20 जो है वो ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जो नहीं बिक रहे वो ये कह रहे हैं कि वी विल बिहेव। नवाज शरीफ साहब हर दरमी पे रहे कि उनको वजीर आजम बनना है, तो फिर कोलिशन में मेरा तज्जिया है पीपल्स पार्टी की, आई डोंट सी एन अलायंस देन। अगर उसका अलायंस नहीं हुआ तो ये तो 6 महीने में पटाखा बच जाएगा। ये वैसे भी आखिरी निजाम ही है नून लीग का तो इक्तदार के साथ। अगर तो इसमें कोई रद्दोबदल हो गई प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर तो फिर PDM 2 बनेगी और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का बड़ा भरपूर रोल होगा। और फिर ये 18 महीने 16 महीने लीड करते। और इलेक्शन की ही मजीद खबरों के लिए मजीद चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर पर्सन स्टूडियो में शाइस्ता यूसुफ। ओवर टू यू शाइस्ता। थैंक यू महानूर और सबा। और जनाब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं जब तमाम लोग नाचेंगे और नाश्ता करने के फौरी बाद निकलेंगे अपने वोट के हक को इस्तेमाल करने के लिए। कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुल्क भर में पोलिंग की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और सरकारी अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। विफाकी अस्पतालों को हंगामी हालात से निमटने के लिए इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर मौजूद हैं। क्या क्या इंतजामात हो गए हैं उन्हीं से जान लेते हैं। जाहिद मशवानी में ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे राफे हुसैन और ख्वाजा नसीर हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। उस्मान अली होंगे पेशावर से और क्वेटा से हमें ज्वाइन करेंगे मुस्तफा खान तरीन। रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। जाहिद मशवानी से जानते हैं। जाहिद कहिएगा, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं। शहर इख्तदार में कल के दिन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजामात हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, ये कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आम इंतखाबात का बिलाखिर सर होने जा रहा है और ये इलेक्शन कमीशन का बैकग्राउंड में हेड ऑफिस है, मरकजी सेक्रेटेरिएट है। ये तमाम ऑपरेशन यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। आज तमाम विंग्स को इकट्ठा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे ब्रीफिंग ली और उनके जो मामला थे सब पे नजर रखी, इत्मीनान का इजहार किया गया। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं और यहाँ पर इलेक्शन सिटी भी कायम किया गया है। EMS सिस्टम जो एक अपग्रेडेड सिस्टम है जो नताइज के असूल के हवाले से, तरसील के हवाले से, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और मरकजी कंट्रोल रूम और तमाम जो विंग्स थे उनके हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। अब इंतजार है कि सुबह जब ये इंतखाबी अमल शुरू होगा तो फिर मॉनिटरिंग वाले भी और तमाम विंग्स अपने अपने मामलात रात गए तक इस वक्त ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीज़ों पे निगरानी रखे हुए हैं। और सिक्योरिटी के मामला जहाँ तक आपने पूछा तो सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बड़े टफ और टाइट हैं। आप देखेंगे 855 हलकों में ये इंतखाबी अमल जा रहा है। 17,500 से जायद उम्मीदवार जो हैं वो इस मुकाबिल हैं और 9 लाख जो एक अमला है इंतखाबी अमल का वो मैदान में कल उतरेगा। 7.5 लाख से ज्यादा जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल हैं, सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर का रुख करते हैं। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर बताइएगा, क्या जो सामान है उसकी तरसील का अमल मुकम्मल हो चुका है या अभी जारी है? बिल्कुल जी, कल एक अहम तरीन दिन जो
2024 आम इंतखाबात का इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर में कल लाहौर के शहरी 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बलियों के लिए अपने जो नुमाइंदगान है मुंतखब करेंगे। लाहौर के वोटर्स की कुल तादाद जो है 68,58,054 है, जिनमें 36 लाख मर्द वोटर है, 32 लाख के करीब खवातीन वोटर है। लाहौर में 4,357 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जबकि लाहौर के अंदर 1,020 के करीब पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। लाहौर डिवीजन की बात करें जिसमें ननकाना, कसूर और शेखुपुरा शामिल है, तो टोटल मिला के 1,20,00,000 के करीब वोटर जो है अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के जो हसास पोलिंग स्टेशन है इसके अंदर 4,480 जो लाहौर डिवीजन के जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर CCTV कैमरा लगाए गए। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो पंजाब जो सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का है वो पंजाब के अंदर होगा, जहां पर टोटल 7 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर जो है वो हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तो इस हवाले से तकरीबन 53,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक कैटेगरी जो कि हसास कैटेगरी है मुकम्मल हो चुके हैं। रुख कर लेते हैं कराची का और हमारे साथ मौजूद है राफे हुसैन। राफे, कहिए शहर कायद में इंतजामात के मामलात कहां तक पहुंचे? आम इंतखाबात के हवाले से कराची में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इन नशिस्तों पर पोलिंग जो सामान है उसकी तरसील मुकम्मल कर ली गई। कराची में 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर बनाए गए थे जहां से ये पोलिंग का सामान मुंतकिल किया गया है पोलिंग स्टेशन पर। जो हसास पोलिंग स्टेशन से और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से वहां पर पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में ये डिस्पैच सेंटर से पोलिंग का सामान मुंतकिल किया गया है और तमाम ही सेंटर से अब पोलिंग का सामान मुंतकिल कर दिया गया है और सुबह जो है वो पोलिंग का आगाज होगा। तमाम तर तैयारियां पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल कर ली गई हैं। जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहां पर 8 पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन हो वहां पर 6 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। क्वेटा चलते हैं, मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, हमने देखा आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, कहिए क्या इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है अभी? देखिए जी, इंतजामात तो तकरीबन सूबाई इलेक्शन कमीशन ने करने थे। इस वक्त में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त बिल्कुल खामोशी छा गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बलूचिस्तान का अगर हम जिक्र करें, कौमी असम्बली की 16 जबकि सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनके लिए 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 51,000 ऑफिसर जो है वो ड्यूटियां देंगे। जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। 31,000 की नफरी में कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों के एहलकार भी तैनात रहेंगे। अलबत्ता आज जो वाक़यात हुए थे किला सैफुल्लाह और खानूजी में, उसके बाद हुकाम के ये कहना है कि सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है और उसको अपडेट किया जा रहा है। आज के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्लान में भी तब्दीली लाई जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फरीद अफरीदी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के हैंड पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और जितना भी इंतखाबी सामान था वो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया गया। लेकिन 1-2 मुकामात से हमें इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पर इस वक्त तक पोलिंग का जो सामान है वो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में नहीं पहुंच सका। इस वक्त नसीराबाद के 2 हल्के हैं, PB13 और PB14, जिनमें 2-4 पोलिंग स्टेशन है जिनमें सामान इस वक्त पहुंचाया जाना बाकी है। ठीक है, यानी कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सामान पहुंचाया जाना भी बाकी है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, खैबर एजेंसी जो कि अब जिला खैबर बन चुका है, कहिएगा क्या इंतजामात हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 45 कौमी और 115 जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उसके लिए भी कल इंतखाबी जो मैदान है वो सजेगा। उसके लिए 2 करोड़ से ज़ायद जो वोटर है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेगा। 15,000 से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनके लिए जो सिक्योरिटी है वो 1 लाख पुलिस एहलकार जो है उनके लिए सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो तैनात होंगे और इसके साथ जो है पाक फौज और जो FC के जवान है वो भी सिक्योरिटी के जो प्राइस है
वो अंजाम देंगे। इस बार जो है जो साबिक फाटा है जो खैबर पख्तूनख्वा में अब जम हो गए हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्शन होने जा रहा है और उन हलकों में भी सिक्योरिटी के जो है वो काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो जुनूबी अजला है वहाँ पर सिक्योरिटी हालात जो है थोड़े से ख़राब हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलेक्शन की ड्यूटी के लिए जो है वो तैनात होगी। पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर के जो 5 कौमी असम्बली और 13 सूबाई असम्बली के हल्के हैं उसके लिए भी 1280 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं और उनमें से जो है तकरीबन 10,000 के जो सिक्योरिटी एहलकार है पुलिस के वो इन पोलिंग स्टेशनों पर जो सिक्योरिटी के जो फराइज है वो अंजाम सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आप तमाम नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद है इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर और तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। तो जनाब, अगर आज की रात को इलेक्शन की चांद रात कहा जाए तो गलत नहीं होगा और कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब लोग निकलेंगे अपने घरों से और अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो कराची में नौजवान के हाथ में दस्ती बम फटने की वीडियो सामने आ गई। हाथ में बम फटने से नौजवान हलाक हुआ जबकि बच्चा और खातून जाँ बहक हो गए। इस वाक़े की तफसील क्या है, बता रहे हैं सलमान लोधी। इकबाल का ये इलाका है, मुबीना टाउन थाने की हुदूद में दस्ती बम फटा है। नौजवान जिसके हाथ में फटा है फारूक इसका नाम है। फारूक है, 17 साल उसकी उम्र है। उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। दुकान के बाहर ये दस्ती बम फटा था जिससे वो तो मौके पर ही हलाक हो गया। साथ ही दुकान पर मौजूद एक बच्चा जो जख्मी हुआ था वो भी अस्पताल में अभी कुछ देर कबल पहुंचकर वो भी दम तोड़ गया है। बच्चा भी एक्सपायर हुआ है जो इस दुकान की ऊपर बैठा हुआ था, वो बच्चा एक एक्सपायर हुआ और एक बच्चा और जख्मी है। फारूक के बारे में ये कहा जा रहा है कि पुलिस अफसर का ये बेटा था। बात है कि ये एक सब इंस्पेक्टर है, कास्ट उसकी मिरानी है, उसका बेटा है, मगर अभी इस चीज को भी फर्दर वेरिफिकेशन की पुलिस ने इसके भाई को हिरासत में ले लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कल मुल्क में आम इंतखाबात का दिन है। कल वोटर्स जहां आजादी से अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, वहीं इलेक्शन कमीशन ने यह भी बता दिया है कि वोटर्स और मीडिया को किन पाबंदियों का सामना करना होगा। आम इंतखाबात 2024 वोटर्स और सियासी जमातों को किन बातों का ख्याल रखना होगा, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। देही इलाकों में पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के फासले पर कैंप लगा सकेंगे। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में उम्मीदवार 100 मीटर के फासले पर कैंप लगा सकेंगे। पोलिंग डे पर वोटर्स को कायल करने, वोट डालने या न डालने की दरखास्त करने पर पाबंदी होगी। पोलिंग स्टेशन की हुदूद के 100 मीटर के अंदर अलामतें, बैनर या झंडे नहीं लगाए जाएंगे। पोलिंग डे पर असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कुछ हसास इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। DRO, RO और इंतजामिया ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के जिम्मेदार होंगे। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल कैमरा ले जाने पर पाबंदी होगी। वोटिंग के अमल की फुटेज बनाने के लिए सिर्फ तस्लीम शुदा मीडिया एहलकारों को पोलिंग स्टेशन में कैमरे के साथ एक बार दाखिल होने की इजाजत होगी। वो बैलेट की राजदारी यकीनी बनाएंगे। मीडिया एहलकारों को फुटेज बनाए बगैर गिनती का अमल देखने की इजाजत होगी। मीडिया पोलिंग स्टेशन का कोई गैर सरकारी नतीजा उस वक्त तक नशर नहीं करेगा जब तक पोलिंग के इख्तिताम के बाद 1 घंटा न गुजर जाए। पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद ब्रॉडकास्टर वाज़े ऐलान के साथ नताइज नशर करेंगे कि ये गैर सरकारी, नामुकम्मल और जुज़वी नताइज हैं। इंतखाबात के लिए सरहदों पर भी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहें 1 दिन के लिए बंद कर दी गयी। 9 फरवरी को मामूल की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन से जुड़ी सारी खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल इलेक्शन के नताइज कैसे तैयार होंगे, इलेक्शन कमीशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने बता दिया है। कर्नल रिटायर्ड साद कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर को एक मोबाइल ऐप दी गई है, वो रिजल्ट की तस्वीर निकालकर रिटर्निंग अफसर को भेजेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो खुद आकर रिजल्ट शीट जमा कराएगा। सारे नताइज रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में कंपाइल होंगे। इनको बेहतरीन सिस्टम दिया गया है। अगर वो फेल हो जाता है
तो ऑफलाइन सिस्टम चलेगा। अगर उसने भी काम नहीं किया तो हमारा रिवायती निजाम काम करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर को एक मोबाइल ऐप दी है, वो रिजल्ट की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो फिजिकल चल के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आएगा और अपना फॉर्म जमा कराएगा। फॉर्म जमा कराते हुए उसका मोबाइल भी देखा जाएगा ताकि पता लग जाए कि ये तस्वीर वही है। दूसरा पोर्शन हमारा रिजल्ट कंपाइलेशन का है, जो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होगी। उनको हमने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है जो ऑनलाइन होगा, रिजल्ट मुरतब करने के काम आएगा। कनेक्टिविटी की वजह से या किसी भी वजह से वो फेल हो जाता है तो हमने फिर ऑफलाइन सिस्टम रखा है। ऑफलाइन सिस्टम को तमाम 855 हल्कों में सिंक भी कर लिया है। अगर ये भी काम नहीं करता तो फिर एक्सेल शीट्स और बहुत से दूसरे तरीकेकार हैं, ट्रेडिशनल तरीकेकार हैं हमारे पुराने, वो सब यूज करेंगे। और सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी इलेक्शन नशरियात, निकलो पाकिस्तान की खातिर। ARY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन जिस पर है सबकी नजर, हर हल्के की सूरत हाल पर मुस्तनद तबसरे और तज्जिए। वोटर्स के लिए आज सोचने का वक्त है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मोतबर इलेक्शन ट्रांसमिशन ओनली एट ARY न्यूज। तमाम हलकों के ऊपर कैंडिडेट्स कौन है, किसके वदे मुकाबिल। बड़ा दिलचस्प हल्का है NA 196 जैकबाबाद। अपनी दूनी लड़ाई है PMLN। आपने खाली जीतने वालों की प्रेडिक्शन पूछी, वो बिकने वालों की बता रहे हैं। MKM के बाद बहुत अच्छा जा रहा है। PMLN इस हल्के से विक्ट्री हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी भी पोटेंशियली लीड कर सकती है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, ARY न्यूज का बड़ा पैनल, सबसे बड़ी नशरियात। पाकिस्तान की सबसे मोतबर और बड़ी ट्रांसमिशन कराची का रुख करेंगे। इलेक्शन पेश गोई, कौन कितनी नशस्तें जीतेगा, कौन सी जमात मार्का मारेगी। काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, मारिया मेमन के जानदार सियासी तज्जिए और तबसरे। मुल्क के लिए अच्छा है कि ये मुल्क के वसीत मफाद में है, अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाइए। कौन से हलकों में होगा कड़ा मुकाबला, इलेक्शन में कौन होगा कामयाब। सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में वसीम बादामी और अनीका निसार ने बिठा दी धाक। जीतने वाले इतने बिकने वाले। टफ कॉम्पिटिशन होगा। तख्ते लाहौर पर होगा किसका राज, KP किसे आजमाएगा। क्या सिंध जियाले का होगा, क्या बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत ही आएगी। चौधरी गुलाम रसूल, खावर घुम्मन और हसन अयूब ने सुनाई जोड़ तोड़ की दिलचस्प कहानियाँ। आपका जवाब है चौधरी निसार। क्या है अवाम के जज्बात, कौन लगा रहा है कितना जोर। ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे और तज्जियाकार। मुल्क भर में नुमाइंदों का बड़ा जाल और उनसे जुड़ा ARY न्यूज का इलेक्शन सेल। हतमी नताइज तक मुल्क की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन में मिलेगी पल पल की बर वक्त मुस्तनद खबर और उस पर रद्द अमल। ओनली एट ARY न्यूज। अज़्मे आली शान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर। ये चलते हैं आपको मेन स्टूडियो। बिल्कुल, तो वोट डालिए, घरों लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल देखते रहिए ARY न्यूज।